Welcome students. Welcome to the lecture number 2 of chapter Strings in Python. In the previous lecture we have learned about the string. That string is basically a collection of characters. Okay, and whenever we want to store the data, which is basically the collection of characters, we put that data within the single quotes or double quotes. Okay, and if we want to store the character data in multiple lines, okay, then in that case we use either triple single quotes or triple double quotes. Okay, and after that I have explained you that there is a way of indexing, and with the help of that concept of indexing you can access the data that belongs to the string. Okay, if you want to access the data of any position of the given string, you can access it with the help of the indexing scheme. And in the previous lecture I also explained you that there are two types of indexing associated with a particular string. From left to right it is a positive indexing, okay, which begins with the 0, and there is also negative indexing which begins from right to left and it begins with the value that is -1. Okay, so this all we have done in the previous lecture. So now the topic that we are going to discuss today is basically the strings operations. ठीक है कि strings के ऊपर हम लोग क्या क्या operations perform कर सकते हैं. In the today's class we are going to discuss that. Okay, so the first operation is basically the concatenation. Concatenation means join कर देना. ठीक है, कॉन्केटेनेशन का मतलब क्या होता है, दैट हम कॉन्कैट करें मीन्स वी कैन जॉइन द टू स्ट्रिंग्स. ठीक है, सो लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ इट कि भाई हम कैसे इस कॉन्केटेनेशन वर्क को परफॉर्म कर पाएंगे. सपोज आई हैव अ डेटा ए इज इक्वल टू, और मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे शैडले, ओके, एंड बी इज इक्वल टू पब्लिक. ओके, अब सपोज अगर मैं कहीं लिख दूं a प्लस बी, सो व्हाट विल आई गेट शैडले पब्लिक, राइट. अच्छा, अगर मैंने c लिखा, c इज इक्वल टू ऐसे लिख दिया सपोज स्कूल, ओके, और एंटर मार दिया, और सपोज अब मैं लिखता हूँ a प्लस बी प्लस सी, सो आई गेट शैडले पब्लिक स्कूल. सो यहाँ पे हमें क्या पता लग रहा है कि दैट देयर इज अ ऑपरेटर एज एन ऑपरेटर दैट इज प्लस, and this operator is basically used to combine the data of two strings. Okay, that is basically used to combine the data of two strings with us, right. So let's see that what is basically the definition of this concatenation operator. We have seen that concatenation is basically used to combining the two or more strings, and plus operator is used as a concatenation operator in string. Okay, so the string operation that we are going to discuss, the first operator that we have discussed is basically the concatenation. Okay, और concatenation में हमने क्या समझा कि भाई ये concatenation का क्या मतलब होगा हमारे लिए. देखिए, it refers to creating a new string by adding two or more strings. Okay, so concatenation is basically, it refers to creating a new string by adding two or more strings. Okay, and in this case the plus operator joins, or we can say that concatenate. Okay, that concatenate strings written on both sides of the operator. ठीक है जी, and creates a new string, string. Okay, so plus operator is basically, जब हम strings के बारे में डिस्कस करते हैं तो इन दैट केस
जो प्लस ऑपरेटर है वो हमारा किस काम के लिए यूज़ होता है, ये हमारा कॉन्कैटिनेशन पर्पस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, अगर सपोज मान लीजिए मैं ए के अंदर मैंने शेडले डाला है, सपोज मैं लिख देता हूँ a + 5, देन व्हाट विल हैपन, वी विल गेट एन एरर, क्योंकि a क्या है, स्ट्रिंग है, और इंटीजर्स के साथ प्लस किसी और तरह से बिहेव करता है और स्ट्रिंग्स के साथ वो किसी और तरह से बिहेव करता है, ठीक है। सो प्लस जब स्ट्रिंग्स को इन्वॉल्व करेगा तो कॉन्कैटिनेशन ही होगा ना। सो यहाँ पे टाइप एरर आ गया दैट कैन ओनली कॉन्कैटिनेट str नॉट इंट टू str। वो कह रहा है कि भाई सिर्फ एक स्ट्रिंग के साथ मैं दूसरा स्ट्रिंग ही अटैच कर सकता हूँ या कॉन्कैटिनेट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं किसी इंटीजर को उसके साथ कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकता। तो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट कि भाई यू कैन नॉट ऐड स्ट्रिंग एंड इंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। तो प्लस ऑपरेटर जो हम यूज़ करेंगे वो हमेशा सेम टाइप के डेटा के ऊपर ही यूज़ होता है। यानी कि अगर मुझे सपोज मान लो ए और बी, अभी फिलहाल यहाँ पे स्ट्रिंग्स डेटा है तो प्लस यूज़ हुआ यहाँ पे, लेकिन दोनों ए और बी सेम टाइप के डेटा हैं, सो काम हो गया। कल को अगर मैं लिख दूँ 7 + 8, तो 7 और +8 दोनों सेम टाइप के डेटा, दैट इज इंटीजर, तो यहाँ पे प्लस भी हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई कि हमारे पास कि हम जो प्लस ऑपरेटर है वो हम जब यूज़ करेंगे जब डेटा टाइप्स, जिन डेटा को हम उसमें उसके द्वारा यूज़ करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, वो सेम टाइप के होंगे। अगर आप दो स्ट्रिंग्स को ऐड करोगे थ्रू प्लस ऑपरेटर तो वो क्या करेगा, उन दोनों स्ट्रिंग्स के डेटा को ज्वाइन कर देगा। जब आप दो नंबर्स को ऐड करोगे विद द हेल्प ऑफ द प्लस ऑपरेटर तो वो उनको एडिशन करके दे देगा, ठीक है। सो द फर्स्ट ऑपरेटर दैट इज, I think it is clear to you that the first operator is basically the concatenation, ठीक है। So this is the definition of the concatenation। और इसको नोट करने के बाद आप जो यहाँ पे मैंने ये जो एग्जाम्पल्स लिखाए हैं, यू कैन यूज दीज एग्जाम्पल्स, आप इन एग्जाम्पल्स को अपना नोट कर सकते हैं, नोट दिस वन, ये यहाँ तक नोट कर सकते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद आप लोगों ने जब ये नोट कर लेंगे तो आपको एक पॉइंट लिखना है, ठीक है। और वो पॉइंट क्या है कि भाई टू यूज प्लस ऑपरेटर डेटा टाइप्स शुड बी द सेम, ठीक है। ये नोट पॉइंट में आप लिख लीजिएगा। और आफ्टर दैट इसको लिखने के बाद यू विल राइट इट लाइक दिस, ठीक है। ये एग्जांपल लिख लीजिएगा, ठीक है। सो दैट इससे क्लियर होगा कि प्लस ऑपरेटर को जब भी हम यूज़ करना चाहते हैं तो दो जो जिस चीज़ को ऐड कर रहे हैं हम उसके द्वारा द डेटा टाइप्स ऑफ दोज टू थिंग्स मस्ट बी सेम, ठीक है। तो चलिए ये हमने पहला ऑपरेटर पढ़ लिया अपना। नाउ लेट्स, पहला ऑपरेशन हमारे पास क्लियर हो गया, दैट स्ट्रिंग के ऊपर जो हम कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। नाउ दैट इज क्लियर टू यू। नाउ द नेक्स्ट ऑपरेशन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज बेसिकली द रेप्लिकेशन, ओके। सो रेप्लिकेशन और वी कैन से दैट रिपीटेशन, ठीक है। सो देखिए हाउ वी कैन परफॉर्म दिस रेप्लिकेशन ऑपरेशन। वी नो दैट ए के अंदर शेडले लिखा हुआ है, ओके। सो सपोज अगर मैं ये लिख दूं यहाँ पे कि ए मल्टीप्लाई बाय 2, एंटर मारा, तो यहाँ पे क्या हो गया, शेडले शेडले 2 बार आ गया है। तो यहाँ पे हमें क्या पता लगा, अगर स्ट्रिंग्स के साथ प्लस ऑपरेटर यूज करते हो तो वो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने का काम करता है, बट इफ यू यूज मल्टीप्लाई ऑपरेटर विद द स्ट्रिंग तो वो क्या करता है, रेप्लिकेट करने का काम करता है, रिपीटेशन का काम करता है, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने लिखा है a × 2, अगर सपोज इफ आई राइट 2 × a देन व्हाट विल हैपन, कोई बात नहीं, चाहे आप a × 2 लिखो या 2 × a लिखो, इट विल डू द सेम वर्क, ओके। सो ये हमें पता लग गया कि रेप्लिकेशन का मतलब होता है रिपीटेशन, ठीक है। सो आपको स्ट्रिंग लिखना है, उसके साथ मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना है, और जितनी नंबर ऑफ टाइम्स आपने उस स्ट्रिंग को रिपीट करवाना है आप उतने नंबर मेंशन कर दीजिए। सो स्ट्रिंग को वो उतने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर देगा, ठीक है। So let's first write the definition of this concatenation, the next operation. So the next one is basically the replication, okay. So जरा ये देख लें कि replication की definition क्या होती है, okay. So it is the process of repeating a particular string up to the number of times specified by user, okay। और इसमें the star operator
creates a new string, creates a new string by repeating multiple copies of the same string. ठीक है जी. So this is the basically definition of the replication. So replication के definition आप अपना नोट कर सकते हैं. And after noting this definition of the replication, आपने क्या करना है, इसके एग्जाम्पल के अंडर आप लोगों ने ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है दैट इज a इंटू टू या 2 इंटू ए, ये आपने इसके अंडर एज एन एग्जाम्पल के तौर पर नोट कर देना है. ठीक है. सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू. ओके. नाउ आफ्टर दिस अब हमने दो स्ट्रिंग ऑपरेशंस देख लिए. फर्स्ट वन इज द कॉन्कैटिनेशन एंड द सेकंड वन इज बेसिकली द रेप्लिकेशन. नाउ द थर्ड वन इज दैट मेंबरशिप. ओके. हमें पता है कि एक मेंबरशिप ऑपरेटर के अंदर हमारे पास दो मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं, एक है इन और एक होता है नॉट इन. ठीक है. सो ये मेंबरशिप ऑपरेटर हम लोग स्ट्रिंग्स के केस में भी यूज कर सकते हैं. और कैसे यूज कर सकते हैं, लेट्स सी दैट. सपोज ए हमारे पास है ही, ए के अंदर हमने शैडले डाल रखा है. ठीक है. अगर सपोज मैं लिखूं यहाँ पे कि भाई डी इन ए, ठीक है, और एंटर मारता हूँ तो मेरे को यहाँ पे आंसर मिल गया ट्रू. वाई ट्रू? बिकॉज डी जो स्ट्रिंग है वो डी कैरेक्टर जो है वो ए वाली स्ट्रिंग के अंदर ऑब्वियसली अवेलेबल है, क्योंकि ए के अंदर हमने शैडले डाला हुआ है एंड डी इज बेसिकली प्रेजेंट इन द वर्ड शैडले. तो आंसर इज ट्रू. बट सपोज अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई पी इन ए, सो इन दैट केस वी गेट द आंसर एज फॉल्स, क्योंकि पी अल्फाबेट जो है वो शैडले वर्ड के अंदर नहीं आता. ठीक है. सो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि एक इन ऑपरेटर है जो बेसिकली ट्रू कब देता है, जो हमने स्ट्रिंग या कैरेक्टर प्रोवाइड किया हुआ है वो गिवन स्ट्रिंग के अंदर अगर मौजूद है तो. ठीक है. तो वो ट्रू देगा. अच्छा, जैसे हमारे पास एक मेंबरशिप ऑपरेटर है इन, द अदर वन इज नॉट इन. ठीक है. सो द नॉट इन बेसिकली वर्क्स इन द रिवर्स मैनर एज द इन ऑपरेटर वर्क्स. जैसे इन के केस में हमने बता दिया कि भाई अगर जो आपने कैरेक्टर या स्ट्रिंग जो दिया है, इफ दैट कैरेक्टर और स्ट्रिंग इज प्रेजेंट इन द गिवन स्ट्रिंग, तो इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स. बट नॉट इन बिल्कुल इसका उल्टा है. इट मीन्स कि आपने जो कैरेक्टर या स्ट्रिंग प्रोवाइड किया है, इफ दैट कैरेक्टर और स्ट्रिंग इज नॉट प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग, देन द आंसर विल बी ट्रू. अब जैसे देखिए यहाँ पे टेस्ट करके देख लेते हैं. हमने यहाँ पे लिया वही सेम टू सेम P और यहाँ लिखा नॉट इन A. सो ऑब्वियसली P नॉट इन A, यस द आंसर इज ट्रू. लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ D नॉट इन A, सो आंसर विल बी फॉल्स, क्योंकि D तो A के अंदर मौजूद है ना. तो सिंपल सी बात है, इन वाला ट्रू कब देता है, जब गिवन कैरेक्टर या स्ट्रिंग आपकी मेन स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल होगा तो ट्रू देगा. लेकिन नॉट इन कब ट्रू देता है, जो आपका कैरेक्टर या स्ट्रिंग है वो गिवन स्ट्रिंग के अंदर अगर मौजूद ना हो तो. ठीक है. सो चलिए इसकी डेफिनेशन भी हम लोग लिख लेते हैं. सो नाउ द थर्ड वन इज बेसिकली मेंबरशिप. ओके. सो मेंबरशिप के बारे में क्या होगा हमारे पास, वी कैन से दैट पाइथन प्रोवाइड्स two types of membership operator to check the existence of the character or string in the given string. ओके. और इसके अंदर जो ए पार्ट हमारे पास आ गया वो है इन ऑपरेटर. ठीक है. सो इन ऑपरेटर क्या करेगा,
it returns true if specified character or string is present in the given string, ठीक है, otherwise it returns false, ठीक है. So this is the basic purpose of the in operator. Now the second one is basically the not in operator, ठीक है. So not in operator क्या करेगा, it returns true if the specified character or string is not present, ठीक है जी, not present, not present in the given string, ठीक है, otherwise it return false, ठीक है. नहीं तो ये क्या रिटर्न करेगा, it will return the false. So this is basically the purpose of the membership operator. और आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इस membership operator की definition नोट करने के बाद यहाँ पे ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है, you can note down this example below it, ठीक है. So यहाँ पे मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि आपको कॉपी पे इसके नोट्स जो बना रहे हैं वो किस तरह से बनाने हैं. That first you have to write the definition which is given by me, and after that जो examples इसके नीचे आपको मैंने बोले हैं, then you have to note down those examples. Okay. So I hope कि membership operator जो है हमारे पास that is in and not in, ये आपको clear हो गया होगा, ठीक है. एंड ये सारी चीज़ें आपने नोट कर ली होंगी, बिकॉज अब मैं इसको हटा के, बिकॉज आई हैव टू राइट डेफिनेशन सम फॉर सम मोर ऑपरेटर्स, सो आई हैव टू क्लियर इट अप, ठीक है जी. सो लेट्स सी कि अब हमारे पास हमने तीन जो ऑपरेशंस हैं, वी हैव लर्न अबाउट दीज थ्री ऑपरेटर्स, दैट कॉन्कैटिनेशन वी यूज प्लस फॉर इट, replication we use star symbol for it, and for membership we have in and not in, two operators with us. Now the next one is basically the comparison. Comparison means we have to perform the compare the two strings. Okay, so how we can do that? Let's see that first of all I will first clear the area. Okay, right. So first of all I'm going to tell you that how many what are the comparison operators that we have available in the strings. That in strings we can use that greater than, equal to, less than, then less than equal to, and not equal to. Okay, so these are basically some of the comparison operators which we can use with the strings. ठीक है. अब पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगा, और उन एग्जाम्पल्स में जो आंसर हमारे पास आ रहा है, वाई हमारे पास वो आंसर क्यों आ रहा है, उसकी एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दूंगा, ठीक है. सो लेट्स सी दैट, सपोज मैं फर्स्ट एग्जाम्पल लेके चलता हूँ एक. ओके, नाउ जो एग्जाम्पल अब मेरे पास है, सपोज मेरे पास एक ए वाले को मैं कर लेता हूँ, ए इज इक्वल टू, ठीक है. सपोज मान लो मैंने लिखा यहाँ पे अमित, देन बी इज इक्वल टू अनिल, ठीक है. नाउ अब मैंने लिखा ए इज ग्रेटर देन बी, सो लेट्स सी कि आंसर इसका क्या आएगा. वी गेट द आंसर एज फॉल्स. सो अब हमें सबसे पहले ये जानना है कि भाई वाई वी गेट दिस आंसर, कि हमें फॉल्स आंसर क्यों मिल रहा है. सो इसको समझते हैं कि भाई ये क्या प्रोसीजर फॉलो हुआ है जिसके कारण हमें यहाँ पे फॉल्स आंसर मिला हुआ है, ठीक है. सो लेट अंडरस्टैंड कि भैया क्या होता है यहाँ पे. देखिए, जब ये दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता है तो उसका वे क्या होता है कंपैरिजन करने का, ठीक है. इस वे को समझना थोड़ा ज़रूरी है. तो सबसे पहले ए एम
INT, ये दो वर्ड्स हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट वर्ड हमारा ANI और L, ठीक है। ये दो वर्ड्स हमें यहाँ पे दे रखे हैं। अच्छा, अब देखिए जब ये कंपैरिजन करता है तो एक तरह से ये क्या करता है, सपोज मान लीजिए माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अब हमने कहा माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म करता है, क्या मतलब, अब देखिए अगर मैं पहला देखूं, जैसे हमें पता है कि हर कैरेक्टर का अस्काई कोड होता है, ठीक है। एज वी ऑल नो दैट कि भाई कैपिटल A टू कैपिटल Z का एक अस्काई कोड है, दैट इज 65 to 90। स्मॉल a टू स्मॉल z का भी एक अस्काई कोड है, दैट इज 97 से लेकर 122। और अगर हम डिजिट्स को अगर एज अ स्ट्रिंग यूज करते हैं तो उनको भी कोड मिल जाता है, दैट इज 48 से लेकर 57 तक, ठीक है। और भी बड़े सारे स्पेशल कैरेक्टर्स के कोड है हमारे पास। सो अब हमें ये देखना है कि भाई कैसे माइनस हो रहा है, किस तरह से प्रोसीजर चलेगा ये, ठीक है। अच्छा, अब देखिए सबसे पहले कैपिटल A यहाँ पे भी है, कैपिटल A यहाँ पे भी है। सो अगर कैपिटल A का स्काई कोड इस रेंज के अकॉर्डिंगली क्या है 65, तो अगर A का भी 65 है, स्मॉल कैपिटल A दोनों का 65 है, तो 65 माइनस 65 आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है। सो ऑब्वियसली दोनों के जब स्काई कोड माइनस होंगे वी गेट द आंसर एज 0। नाउ अब आ जाते हैं हम यहाँ पे M और N है हमारे पास, ठीक है। अब हम सपोज मान लीजिए जैसे अगर मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंगली अगर चलता हूँ, ठीक है, तो जैसे सपोज हम थोड़ा सा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करके चलते हैं, तो मैं थोड़ा साइज छोटा कर रहा हूँ, जैसे A B C D E F G H I J K L M और N, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखो, अगर हम अल्फ़ाबेटिकल सेंस में चल रहे हैं तो जैसे सपोज हमें पता है कि यार स्मॉल A का 97 होगा, तो ऑब्वियसली इसका 97 स्काई कोड होगा, तो स्मॉल B का 98 होगा, फिर इसी तरह से इसका 99 हो गया, फिर यहाँ पे इसको 100 मिल गया, ऐसे ही चल रहा है। तो ये मुझे समझ में आ गया कि यार M का स्काई कोड ऑब्वियसली छोटा होगा एज कम्पेयर टू N, ठीक है। तो जैसे चलो एक बार लिख देते हैं, इनके स्काई कोड भी हम लिख देते हैं सारे, तो ये हो जाएगा 100 101 102 103 104 105 106 then 107 then 108 then 109 और यहाँ पे आएगा 110, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, सो अब कैप स्मॉल m है 109 और ये है 1110, ठीक। सो ऑब्वियसली 109 में से 1110 जब हटे माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो वी विल गेट द आंसर एज -1, ठीक है। सो अब यहाँ पे एक चीज़ देख लो यहाँ पे कि जैसे ही आपकी वैल्यू 0 के अलावा कुछ और आ जाएगी तो यू विल स्टॉप, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्या A इज़ ग्रेटर देन B है कि नहीं है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे कि हमें क्या आंसर मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम अल्फ़ाबेटिकल सेंस में देखें तो हमारा बड़ा कौन सा है हमारे लिए, तो N वाला बड़ा है, यानी कि अनिल का N बड़ा है और अमित का M छोटा है, तो क्या A ग्रेटर देन B हुआ, नहीं। सो दैट्स वाई वी गेट द आंसर एज फॉल्स, ठीक है। तो यानी कि आपका यहाँ पे जैसे अगर सपोज आंसर आ गया -1, ठीक है, तो आप खुद भी देख सकते हैं यहाँ पे कि जब अल्फ़ाबेटिकल सेंस में भी चल रहे हैं तो यहीं से हमें पता लग गया कि यार M छोटा है और N बड़ा है, ठीक है, क्योंकि M का नंबर छोटा है और N का नंबर बड़ा है। सो ऑब्वियसली A इज़ ग्रेटर देन B तो हो नहीं सकता, ठीक है। सो जैसे ही आपका ये बात गलत हुई, यहाँ पे आंसर आ गया फॉल्स। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ, मतलब अगर मैं कर दूँ क्या B इज़ ग्रेटर देन A है, सो आंसर विल बी ट्रू, क्योंकि अब इसने उल्टा किया होगा और ऑब्वियसली यहाँ पे पहला नंबर 0 आया होगा, बट अगला नंबर फिर क्या हो गया होगा, 1 आ गया होगा, ठीक है। सो जैसे अगर आपका आंसर 1 आ रहा है तो इट मीन्स, यानी कि ये समझ लीजिएगा इफ़ योर आंसर इज पॉजिटिव तो ट्रू, बट इफ़ योर आंसर इज नेगेटिव तो फिर आपका आंसर क्या होगा, फॉल्स ही आएगा,
ठीक है, जैसे कि इसमें आया था हमारे पास। सो दीज आर सम कंपैरिजन ऑपरेटर। अच्छा, अब हम सारी चीज़ें चेक करके देख सकते हैं, सारे ऑपरेटर्स लगा के देख सकते हैं। मान लो मैंने लिख दिया a is greater than equal to b, so we get the answer is false. A is less than equal to b, so we get the answer as true. A is equal to b, so we get the answer as false. A is not equal to b, so we get the answer as true. ठीक है, सो इस तरह से हम सारे कंपैरिजन इसके बीच में परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, बट ये याद रखना कि इसका ट्रू या फॉल्स आंसर आना दैट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द ASCII कोड नंबर्स ऑफ द गिवन कैरेक्टर्स। सो ये हमेशा माइनस करता है, माइनस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट करता है। अब जैसे इक्वल टू का केस देखते हैं। सपोज मान लो मैंने एक सी लिखा और उसके अंदर भी मैंने अमित लिख दिया, सपोज एंटर मारा। ठीक है, अच्छा अब सपोज अगर मैं लिखता हूँ ए इक्वल टू बी, सॉरी सी, सो ऑब्वियसली वील गेट द आंसर इज ट्रू। बट ये ट्रू कैसे आ रहा है? ऑब्वियसली आप देख लो अमित लिखा हुआ है ना यहाँ पे। सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो भैया ए के अंदर भी अमित लिखा हुआ है, AMIT, और जो सी है उसके अंदर भी अमित लिखा हुआ है। सो ऑब्वियसली जब मैं इनमें माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि भैया ए से ए माइनस होगा, वी गेट द आंसर इज 0। फिर एम से एम भी माइनस हो जाएगा, अगेन आंसर इज 0। आई से आई माइनस हो जाएगा, आंसर इज 0। एंड टी से टी माइनस हो जाएगा, आंसर इज 0। तो कंप्लीट आंसर हमारे पास क्या आ गया? 0। तो जब पूरा आंसर 0 आ रहा है, इट मीन्स बोथ द स्ट्रिंग्स आर सेम। ओके, सो अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी वो हम जरा देखते हैं कि इसको कैसे हमने लिखना है, कैसे डिफाइन करना है। ठीक है जी, सो चलिए अब मैं इसको हटा देता हूं सो दैट मैं इसकी डेफिनेशन को प्रॉपरली लिख सकूं। सो नाउ हम लोगों ने बेसिकली अपने 3 ऑपरेटर्स पढ़ लिए थे। अभी दिस वन इज फोर्थ वन। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसका साइज इंक्रीज कर देता हूँ। सो साइज भी 20। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द फोर्थ ऑपरेटर, दैट इज द कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, और कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में अगर हम लिखेंगे तो क्या बनेगा हमारी डेफिनेशन? दिस ऑपरेटर कंपेयर to strings character by character to strings, ये that is character by character according to their ठीक है, according to their ASCII codes। ठीक है, until it finds elements that differ। ठीक है जी, सो ये आपको ध्यान में रखना। दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ द कंपैरिजन ऑपरेटर, दैट दिस ऑपरेटर कंपेयर टू स्ट्रिंग्स कैरेक्टर बाय कैरेक्टर according to their ASCII code until it finds elements that differ। ठीक है, जब तक 0 आता रहेगा या आगे बढ़ता रहेगा, जैसे कोई डिफरेंट आएगा यानी कि नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर आएगा, देन ये वहीं स्टॉप हो जाएगा एंड दैट विल गिव यू द रिजल्ट। ठीक है, बट जब तक 0 0 आता रहेगा वो आगे मूव ऑन करता रहेगा। ठीक है, सो ये हमारा जो है कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में हो गया। एंड फॉर द एग्जांपल आप ये सारी एग्जांपल्स जो हैं इसमें नोट कर सकते हैं कि भाई ये किस तरह से किस वे में हमारे सामने वर्क कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने स्ट्रिंग ऑपरेशंस को पढ़ा और उसके अंदर हम लोगों ने कॉन्कैटिनेशन, रेप्लिकेशन, मेंबरशिप एंड कंपैरिजन, ये 4 ऑपरेशंस हमने पढ़ लिए। ठीक है जी, सो कॉन्कैटिनेशन के लिए प्लस है, रेप्लिकेशन के लिए स्टार है, मेंबरशिप के लिए इन एंड नॉट इन 2 हैं, एंड कंपैरिजन के लिए हमारे पास बड़े सारे ऑपरेटर्स दैट इज ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।